Hello. Hello. Okay. Am I audible to the Yes. admin? Yes. Oh, thank you.
Uh, Good evening, one and all present here. Myself, Sonam Sherpa, Assistant Professor in the Department of Economics, Maiduguri College, and also an IQAC member. Would like to welcome all in an invited lecture series at national level on status of women in the Indian society, a changing mindset. The event is organized by Women's Cell and Prevention of Sexual Harassment Cell, Maiduguri College, under the aegis of IQAC Maiduguri College. So I welcome you, all of you, in this the concluding day, concluding lecture that is on today. So first of all, I would like to invite Professor Susmita Pandit, teacher in charge of Maiduguri College, to welcome and say a few words to our participants and guests in this concluding lecture series. Over to TIC ma'am. Thank you, Sonam. Am I audible, Sonam? Yes, ma'am. Please go ahead. Oh, okay. So, good evening to all of you who are here on behalf of me. First of all, I like to convey my heartiest welcome to our invited speaker, Shona De, social activist, yoga and naturopathist, yoga and karate instructor, and also karate black belt. On behalf of all section of Moinaguri College. Hello, then I want to express my heartiest welcome to all the participants who are here. On who are here means who are in this virtual platform, along with my all teaching and non-teaching members of our college, and also my dear students. Today is the last day of our lecture series organized by our Women's Cell and Prevention of Sexual Harassment Cell in collaboration with IQAC on the topic or title uh, Status of Women in Indian Society Changing Mindset. This webinar is actually the result of the survey conducted by those two cells on Women's Day with the guidance of IQAC. The role and the presence of women in our society from the ancient time is actually very interesting. Interesting in the sense, in some cases, we can find that they are they are actually they means women are actually govern their family. But most of the cases, they are actually dominated by their male counterpart. And step by step, they became an object of society. Or society became turned them an object. Uh, what we realized yesterday through lecture, through different songs by our invited lecture. But I think better to stop here because all of you are here. You are very much eager to know, eager to hear some valuable words from our invited speaker. So again, saying thank you very much to our true sale and IQSC, Women's Cell and Prevention of Sexual Harassment Cell and IQSC for wonderfully what I said yesterday for wonderfully shaping our ideas, shaping your ideas, uh, or wonderfully implementing your ideas through this webinar. So thank you very much to all of you. Thank you very much. Over to Sonam. Thank you, ma'am.
Thank you for your warm welcome speech and also for explaining the reason behind conducting this lecture series. And this is an outcome of the survey which has been conducted by this both the women's cell and the prevention of sexual harassment cell on the last years on the sorry it's on the Women's Day. This very outcome of that survey has gave us a thought to have some webinar to conduct a webinar on such a topic which looks like a demanding thing at our society at this level. Thank you, ma'am, for your warm welcome words. Moving forward, I would like to call upon Dr. Purnima Das, head of the Department of Philosophy and NSS coordinator of Mainaguri College, to kindly express her views on the topic. Over to Dr. Purnima Das. Thank you, Professor Shonam Sherpa, for your words. Good evening, all of you. First of all, my heartfelt thanks to all the members of this committee, our beloved teacher in charge, Shushmita Pandit, sincere, hardworking, our IPSC coordinator, Dr. Paramita Ghosh, most dedicated, charming, and soft-hearted conveners, Shushmita Singh and Madhusri Rao. I'm also giving thanks to all the teachers, our loving students, and respected listeners. I'm feeling happy to be present here. And thank you for giving me this opportunity. The present lecture series is going on the theme of status of women in the Indian society, changing mindset. I'm going to express my some points of view on this issue. Discrimination and torture on women in the form of sexual harassment, demanding dowry, etc. are the common picture in our society from the very ancient period. For example, Sati Daho Protha, burning alive women with their husband fire. Balya Vivaha Protha, early marriage to a girl, etc. have been found in the history of Indian society. Apart from this darker side, we are acquainted with some brighter images of Indian women, including highly intellectuals like Lopamudra, Gargi, Maitri, and Khona from our ancient Indian history. A deep study of our history proves that women are not incapable, but restless and immobilized. But most of the people who are having myopic vision and suffering from male chauvinism cannot appreciate the quality, importance, sacrifice, and natural beauty of them. In fact, they have destroyed our Indian constructive foundation and culture. Most of the people know about the concept of feminism. We know that feminism encourages us for social movements, political movements, and ideologies that aim to define and establish the political, economic, personal, and social equality of the sexes. Feminism incorporates the position that societies prioritize the male point of view, and that women are treated as inferior within those societies. Efforts to change that include fighting against gender or male biasness and establishing educational, professional, and interpersonal opportunities and outcomes for women that are equal to those for men. Feminist movements have campaigned and continue to campaign for women's rights, including the right to vote, hold public office, work, earn equal pay, own property, receive education, other contacts,
have equal rights within marriage and maternity leave. Feminists have also worked to ensure access to legal abortion and social integration and to protect women and girls from rape, sexual harassment, and domestic violence. Changes in female dress standards and acceptable physical activities for females have often been part of feminist movement. Now, a question can be raised whether women in present day society are in favor of extreme feminism or balance. By virtue of being a woman, I am not a supporter of extreme feminism for the following reasons. Some of the duties meant for women are prescribed by nature, which cannot be shared by the male class. Childbearing is the travel to be undertaken by the female only as it is determined by nature. But childbearing is a matter of both male and female. Our male class should understand this and cooperate with their counterparts. For that reason, any woman-related issue or matter can create hue and cry in the society. Depending all these facts, it may be concluded that most of the Indian women are neglected in the name of culture and tradition. It is a matter of great surprise that women still suffer from physical and psychological torture by our society. Most controversial sentence is Nari Naroke Doar. Women is the door to hell. Can you imagine that? This type of mentality has not been totally changed in our society till now. So most of the men think that women are just like an enjoyable commodity, and hence they should be enjoyed and thrown. This type of mentality has to be changed. Otherwise, nobody can live happily, peacefully, and proudly in their house or society. A house becomes beautiful and sweet when every member of the house belonging to both man and woman class shows respect, love, and sincerity to each other, because glory of state or country increases directly or indirectly for the happiest and respective householder. Now I'm going to conclude my pitch here. But before concluding, I want to mention Swami Vivekananda's view on women. Vivekananda gave an example of a bird having two wings. Just as a bird is not able to grow on one wing, so the development of society is not possible without the development of women. Thank you. Thank you everyone for giving me your valuable time. Thank you to Dr. Purnima Das for your just explanation on the status of the woman in the present society, in the present context, and also for taking back to the ancient history and also explaining a part of a feminist theory. Thank you for your overview. Now moving forward, first of all, I would like to welcome today our guest, our speakers. We made a little bit changes on the this series. Actually, we are not having a lecture series, but rather we are having an interview with a person. We have with us a person whom I'm going to introduce you very soon, and we're going to have some
some questions with the person, or rather an interview. So allow me to introduce. First of all, I would like to welcome Shona Day, who is our resource person for today's event. Welcome, ma'am. Thank you. Today, for our last lecture on this lecture series on the status of Indian women, actually, we thought of getting acquainted with an extraordinary woman who has been defied the social norms and conventions to live a life of her own choice. I mean, this may be in the metropolitan cities, or rather big towns or urban stations. We can easily come across with such extraordinary persons of women living their life in their own terms. But as Mainaguri College itself is located in a very remote area, we wanted to present in front of you one such woman who rose from one such remote place without any urban amenities. And also, after 3 days of lecture, we thought maybe we should move from the field of the words to have a glimpse of the practical or the real persona that we're talking about. So the person we are getting acquainted with is Sona De. So allow me to introduce her to all of you. Sona De, she lives in a remote area of Mainaguri in Jalpaiguri district of West Bengal. She has completed a master's in environmental studies and also has a BPEd degree. She is a sports person and owns a lot of certificates in the various sports that she's participated in. She has also played karate in Asia Cup. By her profession, she is a government registered yoga instructor and a naturopathist and treat diseases in a natural way. As a karate black belt, she teaches self-defense to the girls in the different schools and colleges without any remuneration. She also has her own yoga and karate center. She is known for always standing against atrocities against the women and has applied her karate skills Well, I think we are facing some network issues with Sri Sonam Sherpa here. So please bear with us.
Hello. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, so hello, this is Dr. Paramita Ghosh, coordinator IQAC Managuri College. I think we are having some network issues with Sri Sonam Sherpa here. We know how there is network problems and they just reign supreme on a virtual platform like this. So just while he is able to rejoin us, let me finish what he started here with us. So Sri Sonam Sherpa was introducing Sona Dev, our speaker for the day, not even speaker, she's the one we are getting acquainted with in this session. So as he was saying, that she lives in a remote area of Managuri in Jalpaiguri, West Bengal. She has completed Masters in Environmental Studies. By her profession, she is a government registered yoga and naturopathist. As a karate black belt, she teaches self-defense to girls in different schools and colleges without any remuneration. She also has her own yoga and karate center. She's known for always standing against atrocities against women and has applied her karate skills more than once in her life to defend herself against eve-teasing and such practices. She always runs in for helping other women, whether they are the victims of domestic violence or any other atrocities as such. And she's also very well known in the locality, in Managuri actually, as a social activist and an environmentalist. She is known for standing by helpless and marginalized people from a very young age. She rescues wildlife animals, especially snakes, and releases them in their natural habitat. And during these COVID-19 pandemic times, she has been actively involved with a group of women in Managuri who have been cooking for and feeding the street dogs from the very start of the lockdown days. She has been numerously felicitated by different organizations and as an extraordinary woman. She has been felicitated as an extraordinary woman, as a social activist, and as an environmentalist. She has also been invited to share her life story on Women's Day by the local channels. And on a personal note, she loves trekking and frequently heads to different hills or forests whenever she finds some time for herself. Now, her only dream is to build an ashram, a shelter, in the future where people who are marginalized in various ways in the society can live independently with honor and happiness. So that is the introduction that we are having here for Shonade. This is the extraordinary person that we are getting acquainted with in this session. This is our concluding session today in the form of an interview. We will have some questions for her and she is going to answer them for us. She is helping us to know us better, to have a look at the persona of a person who lives in such a remote area and who has defied the social norms to etch out a life of her own. So that is Shonade for us. Welcome, Shona, and thank you very much for being here with us. So I welcome you once again. And Sonam, have you got Thank your... you, ma'am. Thank you. Okay, Actually, okay. yeah. Yeah, now hand it Am I over. audible? Okay, I had a Yes, yes, I you had a are audible. network issue. Thank you Okay. for continuing the Okay, event. sir. Now, Okay. Yeah. without much delay, we'll go ahead with the interview schedule now. But before I start the interview, I would like to inform all participants that we are going to have this interview in Hindi language, because our resource person finds comfortable with the Hindi language. And I'll ask the question in English and Hindi also, but she will reply in the Hindi. So I hope that you all will bear with us on this. And there will be at the end, we'll open the house for 5 to 10 minutes to have some question round. You can unmute yourself and ask the question to the resource person, or you can write it to the chat box. We'll go forward. So, ma'am, Sonade, ma'am, are you there? Yeah. Well, thank you for having with us today. So I'll straight away begin our interview schedule with ma'am. Ma'am, can you tell us since when did you get involved in this exceptional works?
आप इस काम पर कब से जुड़े हुए हैं? जी, सबसे पहले मैं सभी को नमस्ते बोलना चाहूंगी और जो ऑर्गेनाइजर्स है सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म लाया कि दूसरों को हम मोटिवेट कर सके कि कैसे आजकल की लड़कियों को चलना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसलिए सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। और आपका जो क्वेश्चन था, मैं कराटे में हूँ क्लास 4 हाँ। से। जब मैं क्लास 4 में पढ़ती थी तब से मैं कराटे से जुड़ी हुई हूँ। जी। और योगा एंड नेचुरोपैथी जो है वो मैं पिछले 16 साल से मैं इस काम से जुड़ी हुई हूँ सर। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या इस एक्सेप्शनल काम पर जुड़े रहने के लिए आपका क्या फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपका? मतलब आप डिड योर फैमिली सपोर्ट टू यू टू फॉलो योर प्रोफेशन एंड पैशन? जी, पहले तो मुझे घर से भी सपोर्ट नहीं मिलता था। जैसे कि कहीं बाहर जाना पड़े खेलने के लिए या कुछ काम करने के लिए, और जैसे कि मैं सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हूँ बचपन से, तब जाके बाहर जाना पड़ता था किसी को हेल्प करने के लिए हो या कुछ भी। तो बाहर जाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि देर हो जाए तब जाके घर में बोलना पड़ता था या डांट पड़ता था पहले। और आज तो सब नॉर्मल है। पहले मुझे भी सामना करना पड़ा, फैमिली सपोर्ट भी पहले नहीं मिलता था, शुरू में नहीं मिलता था, अभी फुल सपोर्ट मिलता है। ओके। तो जैसे आप इन चीजों पर इन्वॉल्व होकर आप कुछ अच्छा काम करने लगे, उसके बाद फैमिली से भी आपको एक कंटिन्यू सपोर्ट मिलता रहा, राइट मैम? जी जी जी। ओके। तो मेरा जो तीसरा सवाल कि डू यू रिमेम्बर एनी मेमोरेबल इवेंट और इवेंट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट इंस्पायर्ड यू टू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड अ पैशन? कुछ ऐसा चीज जिसने आपको इंस्पायर किया हो, इस तरीके के इस वर्क में आपको ढाला हो, ले गया हो, इंस्पायर्ड हुए हो आप? जी, हमारे यहाँ जैसे कि रिमोट एरिया है, तो यहाँ बचपन से ही देखती थी कि आस पड़ोस में, मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ, हो भी सकता था, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आस पड़ोस में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि घर में आके शराब पी के बीवी को पीटते हैं, फिर लड़की लोगों के ऊपर जैसे कि हावी हो जाते हैं। तब जाके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ करना है और लड़कियों को मोटिवेट करना है कि तुम खुद के लिए खड़ा हो सको। और हेलो जी। हाँ मैम, तो मैंने कंटिन्यू कीजिए। बहुत सारे देखे, मैंने प्रैक्टिकली देखे बहुत सारे ऐसे, और खुद के साथ भी बहुत घटनाएं ऐसे हुई, आगे मैं बोलती जाऊंगी तो तब जाके एहसास होगा कि हाँ, लड़कियों को कुछ अलग करना चाहिए। तो बेसिकली आपने आसपास या फिर आपने समाज को देखकर ही आपको ऐसा लगा कि शायद ये जो सिचुएशन है ऐसे नहीं होना चाहिए, या फिर इसको अलग करने के लिए आगे जी 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 कुछ और करना पड़ेगा। जी। ओके। तो मेरा जो दूसरा सवाल है कि डू यू थिंक वुमेन शुड बी इन्वॉल्व इन सेल्फ रिलायंट ऑक्यूपेशन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन? मैं जब ट्रेडिशनल बात करता हूँ तो हम इसको काम जीविका से ना जुड़ के घर का ही काम पे उलझे, या फिर एकदम ट्रेडिशनल में जिस तरीके से लड़कियों को रखा गया है समाज में दर्जा दे, उसी जगह पर रहना चाहिए, उसको अलग होके निकल के आना ही पड़ेगा हम लोगों को? जी नहीं, जिंदगी एक ही है, इसको सही तरीके से जियो और खुद को जो अच्छा लगे वही काम करो। सिर्फ इतना ध्यान में रखना चाहिए कि उस काम के लिए किसी को हार्म ना हो कोई, या किसी को कोई दुख ना हो, किसी को हर्ट ना पहुंचाओ आप, ये सिर्फ ध्यान में रखना है और आगे आप सही काम करते जाइए। और इस काम के लिए आपको आज नहीं तो कल दुनिया सपोर्ट जरूर करेगी। ओके। इको हेलो या हेलो। हाँ
सर। हाँ, यहाँ पर क्लियरली सुनाई दे रहा है मैम, कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ। तो मैं बोलना चाहूंगी कि ये ट्रेडिशनल काम छोड़ के कुछ अलग करो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि आप दुनिया के आगे खड़ा हो पाओ। लड़के और लड़कियां में सिर्फ एक ही डिफरेंस मेरे हिसाब से है कि बायोलॉजिकल थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, बाकी तो सब कुछ एक ही है। तो हम क्यों ना लड़कों के तरह हम क्यों नहीं काम कर पाएंगे, है ना? तो दुनिया की सोच को बदल के हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। आप अगर गेम में अच्छे हो तो इस गेम में जाइए, आप अगर डांस में अच्छे हो तो डांस में जाइए। एक्चुअली आपको अंत में सेल्फ डिपेंडेंट होना है। किसी भी चीज के लिए आपको दूसरे की ओर डिपेंड नहीं करना है मेरे हिसाब से। तो चाहे आप कुछ भी काम करो, इकोनॉमिकली आपको थोड़ा सा तो स्ट्रांग होना ही है। मैं जब सोशल वर्क करती हूँ तब जाके किसी के लिए अगर कपड़ा खरीदना है, किसी के लिए खाना खरीदना है, दुकान में कोई मुझे नहीं बोलती कि तुम तो सोशल वर्क कर रहे हो तो थोड़ा कम ले रही हूँ। कम कोई नहीं लेता है। सोशल वर्क मैं करती हूँ, मेरे जेब से पैसा जाता है, लेकिन कोई नहीं बोलता है कि सोशल वर्क कर रही है तो थोड़ा बहुत कम ले लो इससे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए खुद को कमाना भी है, फिनेंशियली आपको स्ट्रांग होना है। ओके। इसलिए ट्रेडिशनल जो काम है ये सब भी करना है। 24 घंटे में सभी का दिन है। इस 24 घंटे में आप घर फैमिली को भी देखो, घर में जो काम करना पड़ता है वो भी करो और खुद के लिए भी सोचो। राइट मैम। मैम, मेरा जो आगे सवाल जो है ये है, बेसिकली ये हमारा जो एरिया है, पर्टिकुलरली आप जहाँ से बिलोंग्स करते हैं, नॉर्थ बंगाल जोन को लेकर, आपको लगता है, डू यू फील दैट वुमेन इन रूरल पार्ट्स ऑफ बंगाल, स्पेशली इन द रिमोट एरियाज ऑफ मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, want to become a self reliant? क्या आपको ऐसा, आप तो वहां पर जुड़े हुए, गांव में घूमते, जगह जगह पर घूमते, तो आपने कभी ऐसा फील किया है कि यहाँ के गांव के लड़की लोग भी, उन लोगों के पास एक ऐसा फीलिंग कि वी आल्सो वांटेड टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट, ऐसा उन लोगों के फीलिंग्स आपने देखा है, समझा है? आप क्या शेयर करेंगे कुछ? जी बिल्कुल। देखिए, आप किसी भी लड़की से बात कीजिए कभी, तो उनको भी हर वक्त मन में ये होता है कि मैं भी कुछ करूं काम, या कुछ अच्छे जगह जाऊं, या पढ़ाई के बारे में हो, कुछ भी हो। ये लड़की लोग भी स्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज से सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी घर से तो कभी समाज की डर से हम लड़कियां पीछे रह जाते हैं। मैं बहुत सारी गांव में जाती हूँ, ये सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे बहुत जगह जाना पड़ता है। तब जाके वो लड़की लोग जब खुल के बोल पाते हैं ना हमारे सामने, तब जाके एहसास होता है कि हाँ, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए और इन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि खुद के पैर खड़े हो जाओ, तब जाके दुनिया भी आपका साथ देगा। राइट। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा और आगे, इस प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि हाउ मच इंटरेस्टेड डू यू फाइंड द गर्ल्स इन द रूरल पार्ट्स ऑफ बंगाल, स्पेशली इन द रिमोट एरियाज ऑफ आवर मैनागुड़ी, हु वांटेड टू गेट इनटू हायर एजुकेशन? क्या पढ़ने की इच्छा रखते हैं और आगे जाना चाहते हैं? इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा मैम। इस क्वेश्चन पर एक और ऐड करूंगा कि हमने देखा है कि बाय द टाइम लड़कियां जब कॉलेज पहुंच जाते हैं, सम ऑफ देम गेट ऑलरेडी मैरिड, सो बिफोर 20 वो लोग शादी कर चुके होते हैं। तो ऐसे केसों पर और उन लोगों को आगे वो कैसे आएंगे? तो दो चीजें आप थोड़ा बताइए। एक है कि क्या पढ़ने का जिज्ञासा, आगे हायर एजुकेशन में जाने का लड़कियों का अप्रोच कैसा है, और ये जो हमारा सोशल एक लगा है कि शादी का जो है आफ्टर प्लस 18 तक शादी कर लेते हैं, हमारे स्पेसिफिक एरिया को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली देखिए, लड़की हो या लड़का, पढ़ाई के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन करने के लिए 21 साल लग जाता है, फिर जाके खुद को स्टैंड करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। और जिस लड़की लोगों की शादी हो जाती है ना, तो उनके घर के दबाव से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पापा जी बीमार है, या अच्छा लड़का मिल गया है, या ज्यादा उम्र हो गई तुम्हारी तो शादी नहीं होगी। ये सब मेंटली बहुत ही हम लोगों के आगे
सुनाया जाता है, ये सब कुछ हमको बोला जाता है कि टाइम निकल जाएगा तब शादी कैसे होगी। समाज भी ऐसा बोलते हैं, इसका इतना उम्र हो गया फिर शादी नहीं होगी, और पढ़ाई करके क्या होगा, जाके तो पकाना ही है, रसोई में ही घुसना है। ऐसा समाज से मिलता है, हमको सुनना पड़ता है। और घर में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मानो कि मेंटली हमको इमोशनली मेंटली सबसे समझाया जाता है कि शादी कर लो। लड़की लोगों की सबसे मानो कि हम पैदा ही हुए हैं शादी करने के लिए, तो शादी कर लो वक्त में, ये बाद में ये नहीं होगा वो नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे सुना जाता है। तो रूरल एरिया में शादी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम इतने टाइम दे रहे हैं, इतने वक्त दे रहे हैं। आज मैं अगर थोड़ा चेंज करने के लिए मैं थोड़ा टाइम दूं, और मेरे साथ आज जितने लड़कियां हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा करके टाइम दे, तो कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर आएगी, और आ भी रहा है। आज के दिन में चेंज आ रही है थोड़ा बहुत, यही रिटर्न गिफ्ट है। ये जो पहले शादी मेरे जी हाँ बोलिए 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 बोलिए। जी पहले हाँ, मेरे हिसाब से कि सबसे आगे खुद के पैरों में खड़ा हो। कुछ फैमिली हमारे यहाँ भी है जो थोड़ा हाई स्टेटस बिलोंग करते हैं, उन लोगों के घर में लड़कियां भी पढ़ाई करती है, ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए वो जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। लेकिन यहाँ और भी एक प्रॉब्लम जो होता है, फिनेंशियली इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों में बहुत ज्यादा होता है कि उतना खर्चा क्यों करूं। शादी के वक्त भी बहुत खर्चा करना पड़ता है लड़कियों के। जब पैदा हुए कोई लड़की तभी जाके बाप माँ को ये सोचना पड़ता है इनके शादी के लिए इतना खर्चा होगा। आज भी ये सुनाई देता है, बुरा लगता है बोलने में ये सब, लेकिन प्रैक्टिकल है। और तो पहले हाँ, ऐसे सिचुएशन के अंदर पर भी आप जब गांव घूमते तो आप क्या पाते हैं कि लड़कियां समाज का सोच ये हो या वो हो, लेकिन जो लड़की खुद है इंडिविजुअल, जब हम देखेंगे उन लोगों के पास हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए इच्छा, या फिर ये कैसा देखा आपने, किस तरीके से आपने इसको देखा है कि वो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, इस तरीके से आपने देखा है क्या वहां पर? मैं खुद जो देखा वही बोलूंगी, जो सुनाई देता है वो नहीं। मैं खुद जो देखा वही बोलूंगी कि ऐसा भी मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। उन लोगों के पास किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। कई तो ऐसा होता है कि लेबर लोग जो चाय बगान होता है एरिया में, तो बहुत ये सब प्रॉब्लम तो बहुत होता है। खाने का जुगाड़ करने के लिए चैलेंज हो जाता है, तो कहाँ से पढ़ाई, ये एक ख्वाब जैसा होता है। रूरल एरिया की लड़कियों में ये ख्वाब जैसा होता है, लेकिन उन लोगों के मन में चाहत होता है पढ़े। आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में कहीं ना कहीं से वो लोग भी देख लिया करते हैं कि लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, तब जाके उनको भी चाहत होती है कि हम भी कुछ करें। लेकिन कभी तो दोष देते हैं सोसाइटी की, कभी दोष देते हैं हमारी नसीब की, लेकिन उसमें भी कई लोग आज सक्सेस थे। कुछ लोग ऐसे भी है, ये स्कूल में कराटे सिखा कर ही आज थोड़ा बहुत इनकम कर लेते हैं। मेरे ही स्टूडेंट्स है कुछ ऐसे। राइट। तो उन पढ़ाई सभी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो अवस्था आप शेयर कर रहे हैं, ये क्या आपको क्या लगता है, क्या ये आर्थिक अवस्था के कारण हो रहा है या फिर एक समाज का सोच ही ऐसा है असल में आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो दोनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है, क्योंकि समाज में भी ऐसा सुनाई दे, किसी के मन में बहुत सपोर्ट मिल जाता है, पढ़ो अभी शादी नहीं बाद में करो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लेकिन उनके पास शायद पैसा नहीं होता है, पैसों के कारण वो हायर एजुकेशन नहीं कर पाती है, तो घर में बैठे बैठे क्या करना है, चलो शादी करवा देते हैं। और आप ससुराल जाके अगर पढ़ाई करना चाहते हो, वो लोग अगर सपोर्ट कर पाए तो आप पढ़ो, ऐसा होता है। लेकिन सभी को ख्वाहिश होता है कि हम पढ़े। तो पढ़ने की इच्छा सब रखते हैं मैम। मेरा जो अगला सवाल है,
आपसे ही एक रिलेटेड है, क्योंकि आपने तो इन सब चीजों को तोड़ने का तो आपने मतलब प्रण कर लिया है, प्रॉमिस कर लिया है, मैं इन चीजों को थोड़ा तोड़ के आगे निकलूंगी, इसीलिए आप एक अलग जगह पर मुकाम पर आज आप पहुंच चुके हैं। तो आप जैसे कि आप तो जगह जगह पर जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग कर देते हैं लड़कियों को, सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग वगैरह, और चीजों में आप सोशल वर्क्स में आप इन्वॉल्व है। तो हैव यू फेस्ड एनी सोशल चैलेंजेस इन फॉलोइंग योर ड्रीम्स? आपका प्रोफेशन को चलाने के लिए क्या एक सोशल चैलेंजेस आपने फेस किया है? हाँ, बहुत करना समाज पड़ा। की ओर से? हाँ, बहुत करना पड़ा। जब कराटे सीखती थी तब मैं क्लास 4 में थी, तो मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे थे लड़कियां जो बोलते थे कि मुझे भी सीखना है, लेकिन उन लोगों के घर से क्या बोलते थे कि वहाँ सिर्फ सोना ही अकेली सीखती है, बाकी सब लड़के लोग हैं, तो और 2-4 लड़कियां हो जाए बाद में चले आना। ये सब मैं अपना फीलिंग्स बोल रही हूँ, एकदम प्रैक्टिकल फीलिंग्स बोल रही हूँ कि वो पेरेंट्स लोग बोलते थे कि और 2-4 लड़कियां हो जाए फिर आप तुम भी चले जाना वहां सीखने के लिए। आज के डेट में वो लोग जब प्रॉब्लम में होते हैं तब मुझे फोन करके बोलती है कि तू ही ठीक है, तू ही अपने ख्वाहिशों को तू ही पूरा किया, और तेरे जैसा अगर हम होते तो आज इस तरह जिनका भी जो भी प्रॉब्लम हो, इस तरह प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। आज भी सुनना पड़ता है, और बाहर से भी तो ऐसा सुनना पड़ता था, मतलब सोसाइटी से, कि ये क्या लड़कों की तरह कराटे सीखती है, ये करती है, वो करती है, ऐसा सुनना पड़ता था मुझे भी। लेकिन मैंने उन लोगों की बातें नहीं सुना। अगर उन लोगों की बातें सुनी होती, अगर वहीं पर रुक गई होती, तो आज मैं शायद मेरी थोड़ा जो एक्सपीरियंस है जिंदगी में वही आपके साथ शेयर करने की काबिल नहीं होती। राइट, बढ़िया बढ़िया। अब अभी का स्टेटस क्या है कि यदि आप पहले तो आप सीखना चाहती थी, तब घर से बोलते थे कुछ और लड़कियां हो तो तुम जाओ, वरना अकेली हो तो मत जाओ, लेकिन अभी तो आप गांव में जाकर खुद सिखाती है। और जब गांव में मान लीजिए आप एक जगह पर सिखा रही है, वहां पर 10-20 लड़कियां आके आपसे सीखती है, तो उन लोगों का पेरेंट्स क्या कहता है? उन लोगों का पेरेंट्स या फिर उसका समाज आपको अभी सपोर्ट करते हैं ना, रोक लेते हैं कि ये क्या कर रही हो अभी भी? सॉरी सर, सुनाई नहीं दिया कनेक्शन की वजह से। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको खुद आगे बढ़ने के लिए तो घर से आपको भी बोला कि कुछ और साथ लड़कियां और हो तो ही जाना, अकेले तो तुम उस क्लास में मत जाओ, इस तरीके से आप हमको बता रहे थे। तो मैं पूछ रहा था कि अभी तो आप खुद ट्रेनिंग देने के लिए जाती है, तो वहाँ पर मतलब जब 10-20 लड़कियां को आप ट्रेनिंग देती है, उस समय आसपास में लोग तो रहेंगे ही, समाज रहेंगे, तो वो क्या कहते हैं? अभी आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, या फिर बोलते हैं कि ये क्या कर रही है? अभी भी क्या ऐसा ही है क्या? देखिए, हर जगह पॉजिटिव माइंडेड लोग भी है और नेगेटिव माइंडेड लोग भी है। तो जो नेगेटिविटी लेके चलते हैं वो लोग बोलते हैं, कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि ये लड़की क्या करेगी, ये सब सीख के क्या होगा, एक अगर डंडा लाऊ तो ही ये टोंटिंग होता है, पीछे से टोंटिंग होता है। लेकिन वो सब हम नहीं सुनते कभी, और मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने कभी नहीं सुना ये सब। अगर वो सब सुनती तो इतना दूर नहीं कर पाती, इतना काम नहीं कर पाती। लड़कियों को पहले मैं मेंटली मोटिवेट करती हूँ कि खुद को स्ट्रांग बनाओ, फिर जाके फिजिकली करवाने की कोशिश करती हूँ। तो कोई अगर आपको टोके, उन लड़की को मैं समझाती हूँ कि कोई अगर आपको टोके, जितना दूर हो सके तो ठीक है, थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना, लेकिन अगर एक्सट्रीम हो जाए तो कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। कॉम्प्रोमाइज करोगी तो तुम्हारे बाद में तुम्हारी बहन भी होगी, बाद में और दूसरी लड़कियां भी ऐसे हालत के सामने गुजरना पड़ेगा उन लोगों को भी। इसीलिए तुम आवाज उठाओ, आज तुम आवाज उठाओगे तो कल वो भी स्ट्रांग होगा, और दुनिया से ऐसे ही धीरे धीरे हम ये जो नेगेटिव सोच रखने वाले लोग जो है थोड़े थोड़े कम होगा। मेरे ही एक्सपीरियंस से, जब मैं कुछ साल पहले जब था, मैं कॉलेज में जब थी, तब भी ऐसा होता था। आज बहुत इम्प्रूव हुआ है, आज इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। और एक बात कहूँ कि डर, हम इंसान ऐसे है कि सिर्फ डर हमको झुका सकता है, दूसरा कुछ नहीं। अगर आपके लिए किसी के मन में डर हो, आज भी मेरे यहाँ लोकेलिटी में ऐसा होता है कि सोना से कोई पंगा नहीं लेगी, क्योंकि उसे मार खाना ही है।
बोलने में ये सब हिचकिचाहट होती है, लेकिन यही प्रैक्टिकल है कि कोई मुझसे नहीं पंगा नहीं लेती है, सब रिस्पेक्ट करके अब बात करती है, क्योंकि डर है उन लोगों में। पहले तो होता था, पहले मैं बचपन में जब बाजार जाती थी तब भी मुझे इप्टीजिंग सुनना पड़ता, कभी पीछे से कुछ कोई टोके, कुछ भी बस में या मैं, मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस ये सब बारे में है, आगे आगे बोलती जाऊंगी धीरे धीरे सर। राइट राइट। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी सर। दूसरा जो क्वेश्चन है कि इन व्हाट एरियाज do you think girls today are lagging behind? That is, they have not yet been able to get rid of this stereotype or the prejudices of the society. आपको क्या लगता है अभी लड़कियां किस चीजों पर अभी बिहाइंड है, धीरे चल रही है, या फिर एक ये स्टीरियोटाइप मेंटालिटी जो है हम लोगों का देखने का, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ सर, ये जो हमारे एक पुराने ख्यालात है ये तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, फिर भी और भी इम्प्रूव करना है। पहले जैसे ट्रेडिशनल कुछ थॉट्स है हम लोगों में कि लड़कियों को ये लड़कियां कर सकती है, वो नहीं कर सकती है। लड़कियां 10 बजे के या 7 बजे के, हमारे यहाँ तो वैसा ही होता है, 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं रहेगी। हालांकि मैं रहती हूँ, अभी ये एडजस्ट हो गया है, लोग देखते देखते मुझे एडजस्ट हो गया है अभी, तो ऐसा होता है। ये जो रिचुअल थिंकिंग है हमारे यहाँ पर, ये सब अभी भी है, गांव की एरिया में और भी ज्यादा है कि लड़की लोग शाम होने के बाद ही बाहर नहीं जा पाते। तो धीरे धीरे चेंजेस आ रही है और आगे और भी आएगा चेंजेस, कि लड़की लोगों को जींस नहीं पहना जाएगा, लड़के लोगों के साथ नहीं घूमेगा, लड़की लोग बाहर कहाँ इतने दूर घूमता है तू, सारा दिन कहाँ रहती है, ये सब होता है। एक ही फैमिली में लड़के लोगों के लिए दूसरा व्यू होता है और लड़कियों के लिए दूसरा व्यू होता है। हम सभी फेस करते हैं ये। जितने सारे लिसनर्स है, शायद खुद को अगर पूछो आप, तो आप भी सही जवाब आपको भी मिल जाएगा कि हाँ, घर में भी ऐसा होता है और समाज में भी ऐसा होता है। समाज हम पे ये थोप दिया है, कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं। जब बचपन में 2 भाई बहन को एक साथ पिताजी मेले ले जाते हैं, तो जाके वहां से वो पकाने की, रन्ना बाटी बोलते हैं बंगाली में, वो कुकिंग जो सामान होता है, हाँ, वो सब खरीद देते हैं लड़की लोगों को। और लड़के लोगों को बंदूक, गाड़ी, ये वो हम लोगों में डाला गया है बचपन से कि लड़की लोगों को ये सब करना है, लड़के लोगों को वो सब करना है। और बाद में जाके कई बार ऐसा होता है कि लड़के माँ बाप को, एक टाइम आता है लड़के शादी करके माँ बाप को बाहर निकाल देता है, तब जाके लड़कियां जब माँ बाप की सहारा बनती है, तब जाके उनको एहसास होता है। तब तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब बहुत देर हो चुका होगा कि ये सोचने में। इसीलिए ये सब उदाहरण है कि आज से ही सोचो, खुद के घर की लड़कियों को ऐसे बनाओ कि दूसरों की आगे हाथ ना फैलाना पड़े मदद के लिए, कुछ भी चीज के लिए। जो थॉट हम लड़के लोगों के लिए रखते हैं, वो थॉट हम लड़के लोगों के लिए नहीं रखते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? आपने घर से शुरुआत कीजिए, कल जाके हो जाएगी सर। करेक्ट। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। So far, how many people have been benefited from your work so far? आप क्या बता सकते हैं, आप कितने लोगों को अभी तक सहायता दे चुके हो, सहायता कर रहे हैं? देखिए, सहायता के हिसाब से अगर पकड़े तो ये भी एक इनडायरेक्ट हेल्प होगा कि मैं लड़कियों विदाउट कुछ लेके, मतलब पेमेंट नहीं लेके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ। ये भी एक इनडायरेक्ट हेल्प ही है मेरे हिसाब से। तो कई हजार स्कूल्स कॉलेजेस में मैं कई हजार लड़कियों को ऐसे ट्रेनिंग करवा चुकी हूँ। और कुछ लड़कियां ऐसे भी है, वो लोग भी आज ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स आज ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बहुत सारे हैं। और जो प्रैक्टिकली बाहर का जो है, खुद डोमेस्टिक वायलेंस हो या लड़कियों के
ऊपर कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो वहाँ कैसे फेस करना है, या कानूनी सहायता क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं, कैसे हम आगे बढ़े, इस चीज को हम कैसे हैंडल करें दीदी। ये जब लोग हमें बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ ये लोग सोचते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारों को हमने हेल्प किया है कि उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, और ऐसा भी हुआ कि आज वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने बाहर निकाला कभी प्रॉब्लम से, वो लोग आज खुद काम कर रहे हैं हमारे साथ। ये भी एक अचीवमेंट है बहुत बड़ा। हाँ, मैं इसी इसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। तो आप क्या, हाउ मेनी पीपल कुड यू मोटिवेट एंड सक्सेसफुली इन्वॉल्व इन योर सोशल एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म? क्योंकि इससे ही जुड़े हुए क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे। आपसे डायरेक्टली जुड़े देखिए होंगे। पर्टिकुलर तो वैसे, हाँ डायरेक्टली अभी अबव 25 28 इतना लड़कियां है जो कोई ऐसा होता है कि घर के काम की वजह से बाहर नहीं निकला तो दूसरी तरफ से हेल्प कर देते हैं, या उनको मोटिवेशनली कुछ आगे उनके लाइफ के बारे में बोल देते हैं, या डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 25 अबव है अभी। तो जिन्हों को आपने कभी मोटिवेट किया था, सिखाया था, आज वो लोग आपके साथ जुड़े हुए और आपके साथ इस प्रोफेशन में या फिर इस दिशा पर चल रहे हैं, राइट? जी देखिए, जुड़ना तो बहुत सारे चाहते हैं हमारे सोशल जो व्हाट्सएप वगैरह ये सब में, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, बाहर के लड़कियां भी जिनको हम मोबाइल से ही मोटिवेट करते हैं, तो वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम होता है, वो समाज वो घर, ये सब पीछे रह ही जाता है कि समाज क्या बोलेगा, ये इस घर की बहू जाके बाहर। अभी तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह सबकी शादी हो चुकी है, तो वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, लेकिन जुड़ नहीं पाते। वो एक ही कारण, वो भी समाज है और घर है। तो कुछ सामाजिक स्थिति थोड़ा इसको इंटरप्ट करती है। जी। मेरा जो दूसरा सवाल है कि do you think that a woman can move forward socially and financially in the current situation by adopting this type of exceptional profession? जी बिल्कुल, क्योंकि हम बचपन से ही हमको सुनाया जाता है कि बड़े होके जितना हमारे सोच है टीचर बनना है। जितना दूर हमारे पेरेंट्स को पता था कि ये काम करने से ठीक है या ये काम ठीक है, टीचर बनो। कोई अगर पढ़ाई में अच्छा हो तो वो और भी डिग्रियां कर लेते, डॉक्टर बन जाते, कोई इंजीनियर बन जाते, ये सब बोला जाता है। लेकिन हर किसी को मुमकिन नहीं होता है कि वो डॉक्टर बने, टीचर बने। मेरा भी शौक था कि मैं गेम टीचर बनूं। प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, हालत चाहे कुछ भी हो, नहीं हुआ तो मैं कहाँ से, अगर आज मुझको पैसों की जरूरत है तो कौन देगा? तो मुझे भी कुछ भी करके इनकम, वो गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से आपको इनकम करना है। वो जो हम हर वक्त देखते हैं यही बनना है आपको, उसको छोड़ के भी थोड़ा अलग काम होता है। जैसे कोई मैं बोलूंगी कि आपको गाने में आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको लेकर आगे जाइए, आप डांस में हो तो उसको लेकर आगे जाइए। ये जो मुझे पसंद था कराटे की, बचपन से ही शौक था, मैंने नहीं छोड़ा। अगर एक ही लाइन में आप चलते रहो, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो वो जो एक ही तरीके का काम है उसको छोड़ के थोड़ा अलग भी कर सकते हैं। और मेरा जो प्रोफेशनली मैं जो करती हूँ उससे तो काफी बहुत इनकम हो जाता है, तो चल जाता है। बस मैं भी बोलना चाहूंगी सभी को कि हार मत मानो। आपको नौकरी नहीं मिला तो क्या हुआ, आप दूसरा कुछ करो, फिर भी करो, कुछ करो, घर में बैठे मत रहो। उन लोगों को भी पता है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, उन लोगों को पता है जब खुद के पास पैसा नहीं होता है तब जाके आप कुछ अपने शौक की चीज नहीं खरीद पाते हो, तब जाके आपको किसी को देना है या कि आपको भी कुछ दूसरे को हेल्प करना है, आप नहीं कर पाओगी तो जाके माँ के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, पापा के आगे, भैया के आगे कि मुझे इस काम के लिए पैसा चाहिए। बहुत बहुत तकलीफ होता है ये। और जो लोग कुछ भी करके थोड़ा बहुत कमा लेते हैं वो लोग सुकून से जीते हैं।
राइट, राइट मैम। तो मेरे पास एक अंतिम सवाल है आपके लिए, उसके जी बाद सर। हम क्वेश्चन आंसर राउंड को ओपन करेंगे। हम्म, आपने कहा था कि आपका एक सपना है, यू हैव अ ड्रीम टू बिल्ड एन आश्रम फॉर जी सर। फॉर पब्लिक वेलफेयर। इसका जी पीछे का कारण क्या है? आप आश्रम बनाना चाहते हैं बुजुर्गों के लिए, पब्लिक ऑफिस, उसका कारण क्या है? जी सर, सोशल वर्क करने के नाते मुझे बहुत सारा ऐसा चैलेंज के आगे आना पड़ा कि कोई ऐसा भी हुआ कि एक बुजुर्ग को उसके बेटे ने आके फेंक के गया है रास्ते पे, किसी को ऐसे ही निकाल निकाल दिया है घर में। वो अभी बुरी हो गई है शायद, जो शादी करके जिसको आई मीन घर के जो बहू है उनके साथ अनबन हो रही है, तो जाके उनको घर से निकाल दिया जाता है। तब जाके हम उन लोगों के लिए करते हैं कि आज हमारे पास आश्रम नहीं है या कोई सेल्फ होम नहीं है कि सेफ होम में उनको रखे, ऐसा अभी कैपेसिटी नहीं है, तो बाहर जो आश्रम होते हैं, जो आश्रम सुनाई दे रहा है हाँ हाँ, बोलते हैं जी। सर? हाँ, सुनाई दे रहा है। उन लोगों को जब उन लोगों को आश्रम में हम रखने के लिए जाते हैं, तब जाके देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर है, जिनके पास सब कुछ है, लड़का है, लड़की है, सब रहते हुए भी वो बाहर रहती है। क्यों? वो सब चीजें हमको बहुत ही टच करती है कि सब कुछ रहते हुए भी उन लोगों का कोई नहीं है। तो अगर हम चाहे कुछ ऐसा करना चाहते हैं हम कि एक सेकेंड सर, ऐसा करना चाहते हैं कि उन लोगों को हम हाँ, उन लोगों को थोड़ा शेल्टर मिले, वो थोड़ा सुकून से जी सके। आखिरी उम्र में क्या होता है? आखिरी उम्र में 2 वक्त की खाना, थोड़ा कपड़े और थोड़ा प्यार, इस चीज से ज्यादा इन उम्र की बुजुर्ग कुछ नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं, ये थोड़ा सा प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। आज आप किसी को थोड़ा किसी के लिए करो, कल जैसे भी हो आपके मदद के लिए भी कोई हाथ आगे जरूर आएगी। तो हम दुनिया की सोच बदलना चाहते हैं कि दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की मदद करो, ताकि एक दिन आप भी किसी प्रॉब्लम में हो तो आपको भी हेल्प जरूर मिलेगा। अगर आप किसी को हेल्प नहीं करोगे तो आपके लिए भी हेल्पिंग हैंड कभी भी नहीं मिलेगा। और आश्रम, बात रही आश्रम की, मैं अगर जिंदगी में एक भी इंसान को ऐसे रख पाऊं अपनी माँ बाप की तरह, सबसे पहले माँ बाप को देखो, माँ बाप एक ही है। और बाहर आपको जब ऐसे सोशल वर्क करना है तो बहुत सारे इंसान मिल जाएंगे करने के लिए, लेकिन माँ बाप सबसे पहले। माँ बाप को देखो। और बाहर जो लोग ऐसे पड़े रहते हैं, आप लोग भी बाहर जब जाओगे देखोगे कि इस मोड़ पे, उस चौड़ाई पे कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे ही घूमते हैं। और मेरे जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि कुछ लोग बाहर जो होमलेस है, वो लोग बाहर घूमती है, मेंटली डिसऑर्डर हो गया ऐसे रहते रहते। फिर उनको जिस बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि सेक्सुअली हैरेसमेंट, तो उन लोगों प्रेग्नेंट भी हो गया, ऐसा भी हुआ है मेरे जिंदगी में, मैंने खुद देखा है ऐसा। तो ये सोच कैसा लगता है, ये सोच कि इंसान कैसा है कि कोई अगर आज एक लड़का अगर बाहर ऐसे रहे तो उनको वो तो रेप नहीं होते, लड़कियां होती है और इज्जत जाती है तो लड़की की। ऐसा होता है ना सर कि इज्जत गई तो लड़की की गई, क्यों गई? अरे जो जिसने इज्जत लूटा है उसका इज्जत नहीं गया, गया तो हम लड़की लोगों की। ये सोच है हमारे समाज की, ये सोच है। और ऐसी एक लड़की भी मुझे भी मिली थी जो ऐसे बाहर पड़ी थी, मैंने देखा तो आस पड़ोस में पूछा कि ऐसा क्या ये प्रेग्नेंट है, तो बाहर के लोगों ने बोला कि हाँ प्रेग्नेंट है। मैंने इतने दिन सुना था कि वो जो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, बाहर घूमते हैं लड़कियां, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मैंने खुद देखा, फिर उनको जाके हॉस्पिटलाइज किया, फिर वहां से सोनोग्राफी हुआ, फिर वहां से उनको डिलीवरी के टाइम आ गया। तब तक हम लोग 3-4 लड़कियां, हम लोग बरोबर उनको सर्विस देती गई, उनके लिए खाना, उनके लिए दवा वगैरह खरीद
के देना, सब कुछ किया। फिर जाके पता चला उनके घर से भी हमारा बात हुई, वो बांग्लादेश की है, जैसे भी हो वो इस पार आ गई। तो सुना, जब बात हुई थी उनके घर वालों से, तब जाके सुना कि वो जब क्लास 9 में थी, वो लड़की जब क्लास 9 में थी तब किसी के साथ चली गई, शादी करने के लिए चली गई। तो ये भी एक सोसाइटी के लिए, ये भी एक जगह है जानने के लिए कि ऐसा मत करो, खुद को पहले काबिल बनाओ, शादी, फिर या किसी के दूसरे की बहकाव पे मत जाओ, ऐसा डिसीजन मत लो कि जाके आपका पूरा जिंदगी खराब कर दे। आज वहां जब बात हुई बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में हम इनको नहीं भेज पाए, उतना कैपेसिटी नहीं हुआ, ये इंटरनेशनल मैटर हो गया है, इसलिए इतना कैपेसिटी नहीं हुआ कि उनको भेजे। और उनके घर के लोग भी इतना काबिल नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि इनको इस हालत में, ये रेप हो गई है, ये अभी जिस हालत में है, इस हालत में इसको हम घर में नहीं रख पाएंगे। तो अब हम लड़कियां कहाँ जाए? तब जाके उस लड़की को, ये जलपाईगुड़ी एक सेक्टर है जहाँ मातृमा बोल के बंगाली में मातृमा बोलती है, जलपाईगुड़ी सदर हॉस्पिटल में, वहाँ वो लड़की अभी वहां पर है। और जो उसका एक बेबी बॉय एक है, वो आज 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल पहले का बात बोल रही हूँ मैं। तो वो बच्चा अभी होम में है, चाइल्ड होम जो होता है वो वहाँ होम में है। तो हमारी हैसियत कहाँ है लड़कियों की? कहाँ रहते हैं हम लोग? ये सोचिए, हम लोग कहाँ पर है आज? सब कुछ, सब बातों में लड़कियों को डोमिनेट किया जाता है, सब बात में, कि आप बाहर मत निकलो, आप ये मत पहनो, आप वो मत करो, ये मत बोलो, ये बातें लड़कियों को शोभा नहीं देती, ये शोभा नहीं देती। क्यों यार? हम भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान है, हमको भी हक है कि हम अपनी तरीके से जिए। तो इसी दौरान इस सब चीज को देखते हुए, और कभी कभी ऐसा भी होता है, वो जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कई बुजुर्गों को ऐसा देखा कि घर, फैमिली सब कुछ रहते हुए भी वो आज आश्रम में, बहुत दर्द होता है। तो अगर जिंदगी में ऐसा कुछ कर पाऊं कि एक आश्रम बना पाऊं, अगर सपोर्ट नहीं मिला, आश्रम बनाने की हैसियत मुझे नहीं हुई, उतना अगर मैं फिनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाई, तो मैं एक को भी रखूं, एक को भी देखूं, एक के लिए भी करूं, तो ही मेरा सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं, हाँ, मेरी जिंदगी से मैं खुश हूँ, कि मैं जो काम करना चाहिए जिंदगी में कर पाई। फिर एक बात रही, मैं पहले ऐसा होता था, थोड़ा एक्सपीरियंस बोलूं? बोलिए सर 2 मिनट। जब मैं स्नेक रेस्क्यू जब बाहर निकलती थी, तो मैं सभी को नहीं बोल पाऊंगी कि मैं सांप रेस्क्यू करने के लिए जा रही हूँ। जो लोग मुझे देखते हैं सोचते थे पहले कि ये लड़की इतने रात गए कहाँ जाती है, ये लड़की, बोलते थे मुझे इनडायरेक्टली, मैं भी सुनी हूँ कि वो लोग ऐसे बोलते हैं। और वो लोग ही आज मुझे फोन करके बुलाती है कि सोना थोड़ा आओगे, घर में सांप घुसी है। तो मैं जब पहले रात गए ऐसे निकल जाती थी, तब जाके वो जो स्नेक कैचर है, लोगों को दिखाने के लिए स्नेक कैचर और टॉर्च ये वगैरह हमको हाथ में रखना पड़ता था, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ देखो यार, हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं। लेकिन क्यों? धीरे धीरे ये सोच भी आज लोगों का बदल गया है कि मैं अगर 12 बजे भी बाहर निकलूं तो भी किसी को कोई अब दिक्कत नहीं है। रूरल एरिया में होता है दिक्कत, आज भी काम कर रहे, थोड़े थोड़े चेंजेस भी आया है, और आगे भी चेंजेस जरूर आएगी सर। राइट। वैसे ये जो इंटरव्यू तो हमारा बढ़िया जा रहा है। क्वेश्चन से मैं, मेरे पास जितना भी प्रश्न था वो सब प्रश्न यहाँ पर तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को कि हम जिनसे अभी जिसको हम सुन रहे थे, वो जो भी बोल रहे थे, ये एक स्क्रिप्ट नहीं है। हालांकि ये पूरा सोना देखा एक लाइफ का एक प्रैक्टिकली फेस किया हुआ सिचुएशन वो हम लोगों के साथ शेयर कर रही है। और आज के इस इंटरव्यू के दौरान मैं जो फील कर रहा हूँ, और मुझे लगता है सब लोग फील कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं। हालांकि वहां पर एक लाइट जो है कि समाज को बदलते हुए देख रहे हैं, लेकिन जिस रेट से समाज बदल रही है शायद ये रेट काफी ना हो। तो मैं यहाँ पर मैसेजिंग में भी देख रहा हूँ, हमारा पार्टिसिपेंट्स लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं। वो लोग उन लोगों की ओर से भी ये वाला, इसको सुनने के बाद
एक रिस्पॉन्सेस आ रहा है कि आई थिंक बिफोर वी गेट टू लेट वी हैव टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, लेट्स वर्क टुगेदर। ये डिफरेंसेस जो है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बोले या फिर एक समाज का सोच है, इसको बदलना जरूरी है। हालांकि जब जब कठिनाई और सिचुएशन बिगड़ता है तो सोना दे जैसे लोग समुद्र की धारा को चीरते हुए अलग दिशा में भी वो तैर के निकल जाते हैं। ये है हमारा आज का लेसन। सो शुक्रिया, थैंक यू सो मच सोना दे टू शेयर योर प्रैक्टिकल experience with us, or अगर I कोई hope कुछ all of पूछना our participants has also enjoyed. जरूर. So I'll open the house for 5-10 minutes. Okay. यदि कोई, if anyone want to ask a question, they can unmute themselves and ask question one by one, or they can also write on the chat box also. We'll be taking maximum 5 questions for the day. The house is open for all of. सभी के लिए, सभी के line open है. हमारे साथ हमारा स्टूडेंट्स लोग भी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है। स्टूडेंट्स, आप लोग यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप लोग चाहे तो आप बंगाली में भी पूछ सकते हैं। शी इज ऑल्सो गुड इन बंगाली, शी कैन आंसर यू। कुछ रिस्पॉन्सेस मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से सोना दे ने इन चीज़ों को हम लोगों के सामने रखा है, मैं भी खुद, मेरे पास भी कुछ प्रश्न अभी नहीं है कि कुछ क्वेश्चन पूछूं मैं। जिस तरीके से इन चीज़ों को क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया है सोना दे जी ने, उतना ही तो ये पूछना नहीं काफी चाहिए लगता है। कि मेरे जो ये मार्शल आर्ट जो मैंने किया है, ये खुद प्रैक्टिकली कभी अप्लाई करना पड़ा या नहीं। बहुत सारे जानना चाहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, मुझसे ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि तुम तो ये सेल्फ डिफेंस के कोचिंग करवाते हो, तो कभी ऐसा हुआ कि प्रैक्टिकल में तुम्हें अप्लाई करना पड़ा? हाँ, बोलो क्या इसके यदि बारे ऐसा में? कुछ किस्सा या यदि ऐसा कुछ आपके पास है तो जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे कि आपने इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम लोग सुनना चाहेंगे, प्लीज। हाँ, बचपन में से तो बहुत हुआ। लास्ट जो मैं बोलूंगी वो 2020 का है, 1 साल पहले का है। तो मैं और मेरे एक दीदी और उसका हस्बैंड घूमने गए थे। यही हमारे नजदीकी है गरुमारा नेशनल पार्क। तो घूमने के लिए हम यहीं जाते हैं। तो वहां से आते वक्त एक जगह रुके हम। तो वहां बोले कि दादा, वो भैया जो थे वो बोले कि थोड़ा चाय पी लेते। तो मैं और मेरी दीदी ने बोला हम लोगों को चाय नहीं पीना है, आप पियो। एक ही बाइक में गए थे। तो हमने बोला कि हम लोग पैदल थोड़ा आगे जाते हैं, तो ले लेना आप, चाय पीने में 2-3 मिनट लगता है, तो आप हमें ले लेना। तो वही 2-3 मिनट में हम कितने दूर तक, 20 मीटर, हाईएस्टली 20 मीटर तक दूर तक गए, मैं और मेरी दीदी ऐसे ही चलते चलते। तो एक लड़का कहाँ से आ गया पता नहीं, आके बोल रहा है कि मेरे घर के सामने से हाईवे है। फिर भी बोल रहे हैं कि मेरे घर के सामने से लड़कियां ऐसे नहीं जा सकते, आप कहाँ से हो, कैसे हो। वो ड्रंक थे, मुझे पता चला। तो ऐसे ऊपर आ रहा था, जैसे कि बात करते करते ऊपर आ रहा था। तो मैंने ऑटोमेटिकली, मेरा हाथ आगे गया और मैंने ऐसे उसको थोड़ा उसके सीने में हाथ रख के बोला, भाई दूर से बात करो ना, भाई दूर से बात करो। तो पता नहीं, मेल ईगो शायद, वो उसको बुरा लगा कि आपने मुझे, मेरे पे हाथ डाला आपने। तो वो विंटर सीजन था, तो एक टोपी पहना हुआ था मैंने। तो उसने ऐसे मेरे बाल को ऐसे खींच लिया, तो वो टोपी उसके हाथ में चला गया। तब जाके तो मेरा एकदम दिमाग हिल गया कि नहीं, अभी तो चुप नहीं रहना है। तो मेरे पास एक बैग था, ऐसे मैंने वो मेरे दीदी को पकड़ो, और फिर उसको इतना मारा
कि पूछो मत। और भी सारे लोग तब इकट्ठा हो गए हमारे शोर से या चीख से। किसी को मैंने ये नहीं बोला कि बचाओ, मैं खुद का बचाव खुद खुद कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने उसको बहुत मारा। और जो वो लड़के के साथ जो और 5-6 लड़के थे, वो लोग तो देखकर ही पीछे चला गया कि आगे आएंगे तो एक किक मार के मैं उसको जितना दूर तक फेंक रही थी, तब जाके उनको एहसास हुआ कि नहीं, इसके सामने नहीं जाया जाएगी। फिर ऐसे तैसे वो हो गया, लेकिन उनको भी एहसास हुआ कि नहीं, अगर आज के बाद किसी को अगर ऐसे टोन करूं या किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूं तो मेरा फेस जरूर याद आएगी। बस मैं ऐसे बहुत सी हुई कि मेरे लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए लड़ा, दूसरों के लिए लड़ा। बहुत सारे ऐसे केसेस है, ये तो हाल ही में हुआ, इसीलिए बोला कि करना पड़ता है। दुनिया इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। लड़कियों से आप आमने सामने जब बात करोगी उनकी, वो अगर आपको फेथ करके सब बोलेगा, तब जाके आपको एहसास होगा। कोई बाहर मोलेस्टेड होता है, कोई कोई अपने घर में ही, स्पेशली हाई सोसाइटी की लड़कियां घर में ही अपने रिलेटिव्स के द्वारा ही होते हैं, ये सब अब्यूज होना ये सब होता है। तो इस हिसाब से मेरे प्रैक्टिकल बहुत सारी एक्सपीरियंसेस है, ये तो अनगिनत है। बचपन से लेकर आज तक बहुत सारा ऐसा केसेस हुआ है, मुझे प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ा ये सब। सर हाँ, वेल बढ़िया। एक आपने एक शेयर किया हम लोगों के साथ, और सच में ये चीज़ें हिडन भी रहता है हमारे समाज के अंदर पर, लेकिन इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना जरूरी जी। है, और एवरीवन हैज़ टू कम अप। जी तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में को मैं यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर ही हम इस इंटरव्यू को बंद करेंगे। तो सोना दे, थैंक यू सो मच। आपके आज आपने यहाँ पर आके हमारा इस लेक्चर सीरीज को और भी एक स्पेशल लेक्चर सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि इससे आगे सब हम लोग एक लेक्चर ही दे रहे थे, लेकिन आज अंतिम दिन में आपसे रूबरू होने के बाद एक प्रैक्टिकली इन चीज़ों को, एक सोशल वुमेन स्टेटस सोसाइटी को जानने को और समझने को मौका मिला हम लोगों को। थैंक यू सो मच। और हम आशा करेंगे एज एन इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट कॉलेज, जब भी हमें मौका मिले हम आपसे एसोसिएट करेंगे, और आने वाले दिनों कहीं पर ऐसा भी मौका में मिला हम भी कुछ काम कर सके। थैंक यू देश सो के मच बाहर फॉर जाके भी अगर मुझे ये सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करना पड़े किसी के लिए, मैं तब भी तैयार हूँ, मैं करूंगी। इसके लिए मुझे पेमेंट भी नहीं चाहिए। वेल डन, थैंक ओके, दैट्स सो जेनरस। Thank you so much, Thank you. Sunadi. Now, I would like to move on to the concluding session of our event. Before I hand it over my mic to our teacher, I would like to take this opportunity to thank Sibyan Sarkar, students of Philosophy Department of Mainagori College, who is also an active NSS volunteer from Unit 4, because he has prepared all this introductory slides for this lecture series. Thank you, Sibyan. Thank you so much for your wonderful effort. Now, I would like to invite Madhusri Roy, Assistant Professor in the Department of Geography, Coordinator of Prevention of Sexual Harassment Cell, Mainagori College, and also a co-convener of this ongoing invited lecture series, to conclude the lecture series. Am I audible? Over to Sonam, sir? Madhusri. Yes, yes. Thank you, Sonam, sir. I would once again like to inform our participants that we will give you all the feedback links by email within tomorrow. So don't worry about that. You can fill those up and duly receive your participant certificate for this series. Now, as a co-convener of this lecture series, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you for making this lecture series a success. We have indeed come a long way. The seed of this lecture series, as all of you know by now, was planted in last March
on the eve of Women's Day 2021, when a few NSS unit and women's cells of Managuri College jointly conducted a nationwide survey on the status of Indian women in the current time for 2 months. And it was after the analysis of the survey responses that we felt an urgent need to conduct one such program on national level to address the alarming trends and mindset that were visible in the survey responses. And therefore, on the last day of the series, I would like to thank you all for coming forward to participate in this platform to initiate a change of societal mindset that we are in urgent need of. I would only hope that we have been even partially successful in our endeavor here. But as the educator, we also promise to continue with such activities in future, and we hope to find you all by our side in all our future such venture. Till then, take care, stay safe. I announce the series close. Let us leave the platform now. Thank you.